evening and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। और अब हेडलाइंस के साथ है गौरा धवनलाल। Thank you, Sonu. We begin with the headlines. Domestic stock indices rise about 0.8%. Sensex climbs above 54,100 points. Nifty settles above 16,100 level. Rupee appreciates to 79 rupees and 18 paise against the US dollar. And Brent crude prices hover around $100 per barrel. घरेलू बाजार सूचकांक लगभग 0.8% की वृद्धि में रहे। सेंसेक्स 54,100 के ऊपर पहुंचा। निफ्टी 16,100 के स्तर को पार कर गया। रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर $79.18 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $100 प्रति बैरल के आसपास रहा। इससे पहले कि हम खबरों का सिलसिला शुरू करें, हम स्वागत करना चाहेंगे वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल का, जो हमारे साथ जुड़े हैं आज के प्रोग्राम में चर्चा के लिए। राजीव जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब लेते हैं आज की पहली खबर। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी आज बढ़त में रहे। सेंसेक्स 54,100 के ऊपर और निफ्टी 16,100 के ऊपर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.8% की तेजी से कुल 427 अंक बढ़कर 54,178 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.89% की बढ़त से 143 अंक ऊपर 16,133 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.19% और स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% की तेजी में रहे। The Sensex and the Nifty today witnessed gains amid positive global cues. The Sensex closed above the 54,100 points level, while the Nifty settled above the 16,100 level. The Sensex gained 427 points, or 0.8%, to finish at 54,178. The Nifty also rose 143 points, or 0.89%, to settle at 16,133. In the broader market at the BSE, the mid-cap climbed 1.19%, while the small-cap index ended 1.30% up. In the Sensex pack, 22 companies posted gains, while 8 logged losses. Titan was one of the top gainers as it climbed 5.7%. Tata Steel surged 4.9%, while Larsen & Toubro rose 3.5%. IndusInd Bank ended 2.9% up. On the other hand, Dr. Reddy's tumbled 1.3%. Bharti Airtel declined 1.1%, and Reliance and Nestle India both declined 1% each. In sectoral indices at the BSE, all 19 sectors gained. The metal sector index jumped 4.5%. Consumer durables climbed 3.2%. Realty sector rose 2.5%, and basic materials ended 2.2% up. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,198 companies gained, while 1,099 fell. Shares of 141 companies remained unchanged. Rajiv, taking a look at this, the detailed Sensex report that we brought in, do you see some kind of a pattern emerging in what are the sectors that gained a lot and what did not? Is there a pattern or some kind of an answer coming through? There are first indication of some trend emerging in, let's say, banking. If we look at it after having been underperforming the market for a very long period of time because of selling, some of the banking stocks and the financial services stocks witnessed an up move. And the way, if you look at the signals coming in, the data coming in from the derivative markets, there are indications that probably this sector, which has been under the weather because of the over-ownership by FIs, and FIs been selling relentlessly for the last 9 months, and there is probably the selling has slowing down, and this is one area one can look at
for in near term probably might outperform the other broader market indices. Okay. तो आप क्या कहेंगे, अभी जो हम 2 दिन से एक तेजी का माहौल देख रहे हैं बाजार में और ब्रॉड बेस्ड तेजी है, अगर हम देखें तो आज मिड कैप और स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है बाजार सेंसेक्स और निफ्टी को। इस तेजी के पीछे जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है, क्या प्राइसेस कुछ जो इन्फ्लेशन का एक डर था, क्या वो कुछ रिसीड होता नजर आ रहा है? क्या आपको प्रमुख कारण लगता है? देखिए, प्रमुख कारण जो है वो है कि जो ऑयल प्राइसेस जो थोड़े कम हुए हैं ग्लोबल मार्केट्स में, वो एक हमारे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग रहता है ऑयल प्राइसेस, बिकॉज हमारा इंपोर्ट होता है ऑयल एंड उसके चलते इन्फ्लेशन और जो बाकी चीजें हैं वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट होती हैं। तो एक जो ऑयल प्राइसेस में जो कमी आई है वो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन के आने वाले महीनों में कम हो जाएगा। दूसरा एक और चीज है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो कि सप्लाई चेन बॉटलनेक्स और डिसरप्शन की वजह से बढ़ रहे थे, वो थोड़े से बेटर होना शुरू हुए हैं। इन द सेंस दैट अक्रॉस द बोर्ड अगर आप एग्री कमोडिटीज देखेंगे तो उनके प्राइसेस थोड़े में कूलिंग ऑफ हुई है। सो वो सारी की सारी चीजें कुल मिला के इंडिकेट करते हैं, जैसा कि आपने कहा, दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन will come down. You spoke about, Rajesh, supply chain disruptions, decreasing, and we also know the demand in India is picking up. Of course, I think prices are playing a role. The marginal strengthening of the rupee probably today is also somewhat going to play a role. What do you think is the recovery outlook in future? Will this trend continue, and what are some possible dampeners? If you're saying supply chain disruptions and shortages of key intermediaries, they are going to be bridged, or is this just they are likely to take some more time? See, let me take there are two things in this. One is the supply chain. Now, given the fact that there was a lockdown in parts of China, and it's a global supply chain, so there were issues with some of the intermediaries. So all those things probably have a high probability of not repeating themselves in next couple of months. We can't say. I mean, you don't know nothing can be said about COVID. Then comes the biggest uncertainty continues to be the Russia-Ukraine conflict. I mean, if that gets settled down, if in some time we get a news about that getting settling down, I think not only the oil prices but the price of some of the other important essential agri commodities and oils, edible oils, is going to come down, because the fact is that every trader or institution involved in the commodity trade in the physical world tend to kind of become a sort of scary of selling is this thing. They keep on waiting for a further price increase to happen and assuming that cycle will move up. So all those things will pan out, but that there is a big if this happens. So, right. I mean, given the situation, I would take one day at a time as it comes, not think much and make inferences about what's going to happen, 2 months down the line. It's an evolving situation. It's a situation where no one has an correct answer. लेकिन एक चीज है विच हैज ऑलरेडी हैपेंड और उसका असर बाजारों पर डेफिनेटली पड़ेगा, जैसे आप दोपहर को मनी मैटर्स में भी कह रहे थे, और वो है Q2 के रिजल्ट्स, जून क्वार्टर के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। उनसे आपको क्या आशा है? ऑलरेडी कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं। टाइटन का आज हमने देखा है कि 5% से अधिक बढ़ा है। कल TCS का रिजल्ट आने वाला है। ओवरऑल आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इस कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन से? देखिए, टाइटन का क्वार्टरली अपडेट आया था। कुछ कंपनी रिजल्ट से पहले अपना इनिशियली एक बिजनेस अपडेट देने का चलन हो गया, सो दैट रिजल्ट वाले दिन बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी ना आए। जहां तक रिजल्ट की बात है, वो डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर अलग अलग है। जिस सेक्टर में भी ऑयल और ऑयल डेरिवेटिव वर दी पार्ट ऑफ द की रॉ मटेरियल, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। जिसमें भी अगर देखेंगे आप फाइनेंशियल सेक्टर या बाकी जो है उनमें कोई चीज का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, तो वो उनके आएंगे, उनके रिजल्ट बेटर आ सकते हैं। आई मीन रिजल्ट अच्छे आना, अगर कोई कंपनी 15% ग्रोथ दिखाती है, इज डिफरेंट फ्रॉम की एक्सपेक्टेशन 20 की थी और आपने 15 दिखाए, तो वो भी एक बाजार और दैट पर्टिकुलर डे तो उसको खराब ले लेता है। दैट इज अ नैरेटिव की दिस होल सो कॉल्ड एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन और जो पोल जो होता है, दैट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन
जो ट्रेडर्स के लिए ठीक है क्योंकि वो ट्रेड करेंगे, लेकिन फॉर एन इन्वेस्टर अगर कंपनी इस क्वार्टर में 20 की जगह 18% ग्रो करी है विदाउट फॉर सम रीजन के उनके कुछ कॉस्ट कंपोनेंट बढ़ गए या कुछ और वजह से बढ़ गया, तो आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी अ कॉज ऑफ कंसर्न. कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ कि क्या हो सेक्टर्स कौन कौन से हैं, आई थिंक मेटल्स का प्रॉब्ली लास्ट क्वार्टर होगा जहां पे वो अच्छे रिजल्ट दिखाएंगे, बिकॉज इनिशियल 1.5 मंथ इस क्वार्टर के जिसके रिजल्ट आएंगे उसमें प्राइसेस हाई थे, उसके बाद से प्राइसेस डिक्लाइन करना शुरू कर चुके हैं जी. तो वो एक उसका कुछ असर रहेगा. सर जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उनके भी इनपुट प्राइसेस जो थे लास्ट क्वार्टर में काफी हाई रहे हैं, तो वो सारे के सारे थोड़े से मार्जिन अंडर प्रेशर, वो सारी चीजें दिख सकती हैं. सो अलग अलग सेक्टर पे डिपेंड करता है, पर ब्रॉडली अगर आप देखेंगे निफ्टी अर्निंग वो बिकॉज ऑफ द एग्रीगेट के आईटी के सेक्टर के नंबर अच्छे आएंगे इन एब्सोल्यूट टर्म, तो वो ग्रोथ दिखा देंगे. Rajiv, broadly, you earlier mentioned that about input costs, and we know that by and large they have been increasing if you take a cross-section of industries. Do you think there's going to be a higher pass-through of input costs to the selling prices? Well, there has been cases where the companies have been increasing the prices, gradually, and we see if you look at compare the price of FMCG, especially the FMCG branded FMCG or even non-branded FMCG space, there the things have moved up. See where the elasticity of demand comes into play, right. And wherever that is slightly troublesome pain point, that is where the prices have not increased and companies have taken a hit on the margin. I mean, best of the names have taken a 300-400 point basis basis hit on their margins in the consumer durables and non-durable space. So I think that is one area which one needs to be very careful of. And I don't think so that because see, the moment you tend to increase the prices, there is another player with a deeper pocket who will come and say, okay, fair enough, you want to increase your price, I will take away your market share. And in some of the businesses, market shares are very touchy subject. You are not able to build market share very easily. And also the fact is that this thing about market share being taken by another competitor, it's very tough to get it back. You have to do a lot of ad spend and all. So it depends, on case to case basis. I mean, it's not very easy to generalize this thing. एक और मुद्दा है FIIs. क्या कुछ शुरुआती इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि FIIs अब फिर इमर्जिंग मार्केट्स और खासकर भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं प्रेजेंट वैल्यूएशंस में? कैसे देखते हैं आप FIIs के जो हमने कुछ रवैया बदला हुआ देखा है उसको? बहुत ज्यादा. आई मीन इट वुड बी टू अर्ली टू कॉल इट्स अ चेंज इन ट्रेंड. देखिए एक सर्टेन लेवल तक ही यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रेंथ गेन कर सकता है. बियॉन्ड अ पॉइंट देन यूएस इकोनॉमी स्टार्ट गेटिंग हर्ट बिकॉज उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हर्ट होना शुरू हो जाते हैं. पardon, वो कुछ थोड़ा सा इशू हो जाता है. तो आई थिंक देयर आर इंडिकेशन 9 महीने सेलिंग हो रहे थे. बट अगर आप एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट में देखेंगे तो इंडिया हैज इन फार बेटर प्लेस. और हमारे ये जो अगर आप नंबर्स देखेंगे ये आउटफ्लो के नंबर कि बाकी कंट्रीज से काफी ज्यादा कम थे और हमारा जो करेंसी पे इम्पैक्ट ऑफ दैट वाज आल्सो फार लेस. हम लोग बात करते हैं कि 79 हो गए 80 हो गए, बट वी हैव टू लुक एट इन कि बाकी कंट्रीज के बाकी करेंसीज के परिप्रेक्ष्य में वो कैसा रहा है. तो वी आर फार बेटर प्लेस. देयर आर इंडिकेशन कि हो सकता है कि जो कल परसों पिछले हफ्ते जो अभी इस हफ्ते जो बाइंग फिगर आई है वो कंटिन्यू करे. मेरा हाइपोथेसिस होगा कि शायद कुछ टाइम तक कंटिन्यू करे. और बिकॉज मोस्टली वो लार्ज कैप आईटी या बैंकिंग सर्विसेज में ज्यादा एक्सपोजर आता है. तो मेरा assumption आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जारी रहे और इन दो क्षेत्रों में पैसा जो है या इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक फोकस कंपनी पे जो है द फ्लोज आए जो वहां से बाहर से आ रहे हैं. और DIIs जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आपको लगता है कि उनका जो इतना इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है पिछले 2 सालों में वो सस्टेन रहेगा आगे भी? देखिए DI का जो देयर हैज बीन अ बेसिक रीसेट इन द एक्सपेक्टेशन एंड द वे द फ्लोज हैज कम. मेरे को लगता है कि DI का इंटरेस्ट रहेगा. देयर इज नो रीजन कि उनका इंटरेस्ट ना रहे. फॉर अ सिंपल रीजन, अगर उनका इंटरेस्ट बाजार की मंदी में रहा है
तो जब कोई भी एसेट क्लास अच्छा करता है तो ज्यादा दुनिया उसके पीछे भागती है. परफॉर्मिंग एसेट क्लास को चेस करने के लिए जो पुराना लिक्विडिटी होती है और एडिशनल लिक्विडिटी दोनों जाती है. तो इफ थिंग्स टर्न बेटर फ्रॉम हियर, देन द प्रोबेबिलिटी कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं दे विल कंटिन्यू टू पुट देयर मनी इनटू डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट थ्रू SIP और अदर सेविंग इंस्ट्रूमेंट, वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें मुझे नहीं लगता कोई कमी आने वाली. शायद हो सकता है थोड़ा सा बढ़ ही जाए एज ग्रेजुअली दैट जो पेनिट्रेशन है इस चीज की, जो मोबाइल फोन, जो ऐप, जो फिनटेक कंपनी सेविंग्स को टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ पुश करने के लिए कामयाब हुई है, उसके चलते मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये ऐसा रहेगा. Rajiv, we'll go in for a short break, but when we come back, we'll want to understand a little more from you on, we are seeing this relief rally which has come in the market, and we just spoke of the small investors who've just recently entered the market. So in terms of that, many of them are still novices. So what advice would you give them? But right now we'll take a short break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी. आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से. लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान. अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग. डायल कीजिए 870-001-4242. नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242. Welcome back to Market Mantra. We are with market expert Rajiv Nagpal. Rajiv, now do tell us what advice would you give investors? Somewhere they were shaken, and then because everybody was in the same boat, so one wasn't feeling too bad about it. But a novice is a novice, and we definitely need inputs on that. See, this is what you just said probably reflects what is the reality. That is that, because everybody is losing money, I am losing money, it does not matter. I mean, that is probably, while it is the reality of life that most of the people think that way, but that is not the right thing to it. Right. Think because, it's your money, you want to spend, take yourself as an individual unit. Coming to this thing, your point of what they should do, I mean, they should learn the lesson in last 6 months. In 2021, last part of 2021, between till October at least, I mean, cats were flying, dogs were flying on the street, people were not bothered about what they are investing into, buying on tips available on social media, Twitter, all those hands. There's a lot of people who have become overnight experts and giving yarn on Twitter about stocks. I mean, basically stick with your SIP. First, understand what stock market is. It takes years to understand a business. Mm-hmm. And investing in stock market is buying a part of the business and not buying a price. कि मैंने 1500 पे ले लिया और ये 1600 हो जाएगा तो बेच दूंगा या 2000 हो जाएगा बेच दूंगा. All those hope is never a strategy in market. So you are investing in a business, stick to SIP, understand a business, invest for long term. Don't invest based on rumors, hearsay, all those things which which we keep on saying, over a period of time, all those, what should I say, all those tips and all, right. Avoid them. Right. And otherwise, again, once people are very wary of accepting the fact that they have taken a wrong decision, understand that when this time when the market moves up and the stocks, those penny stocks in your portfolio which you were accumulated over last 1.5 years, just get rid of them, stick with good businesses so that the drawdown on the portfolio is much less when next time the bearish phase happens. I think that's very fair, Rajiv, when we talk of, I think this gravitas, this depth and commitment, when you said buy a part of the business and not the price, I think that is kind of a mantra which is important. बिल्कुल. और अब रुक करते हैं रुपए का. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे की मजबूती के साथ 79 रुपए 18 पैसे प्रति डॉलर पर था. विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.12% की गिरावट के बावजूद 2 दशकों के उच्चतम स्तर 106.97 पर था. आप पहले इस पर टिप्पणी कर चुके हैं कि शायद यूएस को भी हर्ट कर सकती है डॉलर की स्ट्रेंथ
factor of point, अगर हम सिर्फ रुपए की बात करें तो क्रूड ऑयल और जो कमोडिटीज की प्राइसेस नीचे आई हैं और आरबीआई ने जो अभी हालिया इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉरेक्स इनफ्लो बढ़ाने के लिए, आपको लगता है इससे एक सेंटिमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा और जो आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे वो बनी रहेगी रुपए में? देखिए, स्टेबिलिटी जो है ऐसा नहीं है कि देखिए द फैक्ट इज कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली एवरी करेंसी लिटरली डेप्रिशिएट, तो ऑर्डरली होना चाहिए, वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी से एक तो जो हेजिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और थोड़ा सा जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो पीपल टेंड टू जो लोग जिन लोगों की फॉरेन अर्निंग है वो इंडिया में लाने के लिए थोड़ा डिले कर देते, तो एक इक्विलिब्रियम जो फ्लो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाता है। बट आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत बड़ा ऐसा जो आरबीआई ने स्टेप लिया, ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प, बट आई थिंक आरबीआई इज बीइंग टू कॉशियस एंड राइटली सो, बिकॉज एज सेंट्रल बैंकर दे कांट बी aggressive and cowboys. So what RBI is doing is probably the right thing, but to me, even if that would have not happened, things would have remained same. I don't think so. There is a very grave threat of any sharp decline in rupee at this point of time. आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एशियाई बाजारों में आज मजबूती का रुख था। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.8% के उछाल में रहा और जापान के निकेई में 1.5% की बढ़त दर्ज हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.8% की वृद्धि में रहा। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग के हैंगसेंग दोनों में 0.3% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां भी एशियाई बाजारों के अनुरूप तेजी का रुख था। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 1.3% की बढ़त पर था। जर्मनी के डैक्स और फ्रांस के कैक दोनों में 1.7% की वृद्धि चल रही थी। A quick look at the U.S. markets. The U.S. share markets posted modest gains in a volatile session yesterday. The three major U.S. stocks rose as investors digested new clues on the U.S. central bank's approach to rate policy and its inflation fight, detailed in the minutes from the latest Federal Reserve meeting. The Dow Jones Industrial Average Index added 0.2%, while the S&P 500 and the Nasdaq Composite both gained 0.4% each. राजीव, क्या कहेंगे आप? जो लेटेस्ट इंडिकेशन है कि जुलाई में इस महीने तो एक रेट हाइक आएगा इंटरेस्ट रेट में यूएस में, लेकिन आपको लगता है कि जो कमोडिटी प्राइसेस नीचे आई हैं उसके बाद हम आशा कर सकते हैं कि अब ये पेस थोड़ी कम हो जाएगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यूएस फेड की पेस कम नहीं होगी, बिकॉज वो लोग देवर बिहाइंड द कर्व इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड उनकी एक एटीट्यूड रहता है कि वो दे विल probably go overboard now. So I don't think so कि बहुत एकदम और कोई ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाए जब तक कोई डेटा पॉइंट उनको स्लो डाउन, उनके नंबर्स अगर आप देखेंगे चाहे वो जॉब नंबर्स हो या वो बाकी उनके मैक्रो नंबर्स हो, दे आर कमिंग स्टिल एक्सट्रीमली गुड। तो उनको कोई जल्दी नहीं है इस पॉलिसी को वो करने के लिए। एंड कि अंडर एक हम चीज को ध्यान रखना चाहिए, हम हर चीज को एक्चुअली ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स को रिलेट करते हैं थ्रू मार्केट। हमारा इकोनॉमी को देखने का प्रिज्म जो है वो इंडेक्स की मूवमेंट है कि मार्केट करेक्ट कर दी तो ऐसा हो जाएगा, बट देयर इज नो परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन व्हाट्स हैपनिंग इन इंडेक्स एंड व्हाट्स हैपनिंग इन इकोनॉमी। चाहे वो आप इंडिया में ले लें, चाहे वो आप यूएस में ले लें या कहीं भी ले लें, इट्स अ वेरी ब्रॉड क्रूड वे ऑफ लुकिंग एट इट। जी, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि 8.6% से 2% पे लाना है इन्फ्लेशन, वो थोड़ा टाइम रहेगा। उनका ऑब्जेक्टिव नहीं चेंज होने वाला, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट, बिकॉज बहुत टाइम बाद ये स्पाइक आया और वो एंड दे टेक द इन्फ्लेशन थिंग वेरी वेरी सीरियसली। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हाल में ऐसा करेंगे। जी, राइट। We have another story. Finance Minister Nirmala Sitharaman today chaired the first meeting of the Apex Monitoring Authority constituted to review the activities of the National Industrial Corridor Development Program. Addressing the meeting, Ms. Sitharaman emphasized upon the need to ensure optimal utilization of resources. She said that Prime Minister's Gati Shakti National Master Plan was expected to bring about greater coherence in all investments in infrastructure projects. She asked the Niti
Niti Aayog to map out all the different projects such as industrial corridors, freight corridors, defense corridors, PM Mitra parks, medical and pharma parks and logistic parks to understand the need for bringing them under PM Gati Shakti. The finance minister also asked the shipping ministry to map out all the seaports connected to various industrial corridors to see whether there are meaningful linkages. अब आपका ब्रीफ सी टिप्पणी, ये जो एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन हो रही है प्रोजेक्ट्स की, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, ये दिस इज द की टू द इकोनॉमिक रिवाइवल इन इंडिया. Yes, I mean this of course has been key to for last performance of some of the sectors like LCV. तो LCV में जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में जो टर्न अराउंड टाइम होता है साइकिल की, वो इस बार काफी कम रहा है एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम. So this is one of the key things which matters. जी, लेते अगली खबर. रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है. ये कदम सरकारी व्यवसाय का आवंटन निजी क्षेत्र के बैंकों को भी देने के फैसले के अनुरूप है. रक्षा मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक को मंत्रालय की विदेशी खरीद के लिए ऋण पत्र और प्रत्यक्ष अंतरण सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है. इन तीनों बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं. अब तक केवल सरकारी बैंक ही रक्षा मंत्रालय को ये सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत थी. Global crude oil prices today gained around 1% in intraday trade. Brent crude was trading at $100.50 per barrel, while WTI crude prices were at $99.70 per barrel. कितना सिग्निफिकेंट है ये $100 पर जो आ गया है क्रूड का प्राइस? एक समय पर बात हो रही थी कि शायद $200 तक भी जा सकता है. आपको लगता है कि यहाँ टिका रहेगा? भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये? देखिए सोनू जी, कोई भी एसेट क्लास अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें जब कोई वो एक सर्टेन लेवल पे जहाँ पे नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते अगर पहुंच जाती है, तो उसके जो फॉरकास्ट है वो वो इस तरीके से करे जाते हैं जो मैथमेटिकल और कुछ स्टैटिस्टिकल फॉर्मुलेशन से होते हैं, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता. पिछले साल सब बातें करते थे 65,000 कब होगा सेंसेक्स, 70,000 कब होगा. अब आजकल बात करते हैं कि थोड़े दिन तक बात कर रहे थे कि 40 कब हो जाएगा, कितना नीचे जाएगा, निफ्टी 14 से जाएगा. सो I mean, this is very well known that there's one foreign bank which came out with a estimate of $65 और एक है जिन्होंने कहा है कि शायद यूक्रेन की वजह से $360 हो सकता है. तो these forecasts have largely no meaning in real life because there are certain other things which work under. अगर 120, 30, 40 पे US इकोनॉमी अगर आप पंप लेवल के प्राइस देखेंगे, they have been moving higher and अगर रिसेशन है तो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ ही नहीं सकते. तो आर्टिफिशियली ठीक है, पंप करके कार्टेल ने एक प्राइस को ऊपर कर दिया है, बट दे वोंट सस्टेन. सो आई थिंक probably we are moving towards further lower on these on the oil price until unless there is a flare up in a geopolitical situation once again. I think candor is something which is really appreciated. Thank you, Rajiv. आइए और अब चलते हैं प्रेशियस मेटल्स की ओर. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 115 रुपए की बढ़त से 50,615 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुआ और जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 360 रुपए के उछाल से 57,090 रुपए प्रति किलो हो गई. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर दिवसीय कारोबार में सोना बढ़त के साथ $1,742 20 सेंट प्रति आउंस पर था. चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $19 30 सेंट प्रति आउंस पर थी. समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा. राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए. थैंक यू Mr. Rajiv Nagpal, thank you very much for coming on to our show. And now, before we close, a reminder of the headlines. Domestic stock indices rise around 0.8%. Sensex climbs above 54,100 points. Nifty settles above 16,100 level. Rupee appreciates to 79 rupees and 18 paise against the US dollar. And Brent crude prices hover around $100 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.